Hello everyone, welcome to channel. Let's start our next chapter, structural organization in animals. In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by single cell. In the complex body of multicellular organism, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well-organized manner. The body of a simple organism like Hydra is made of different type of cell, and number of cell in each type can be in thousands. The human body is composed of billion of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular animals, group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is tissue. ग्रुप इसमें कह रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हमारे बनाते हैं टिश्यू। अब आगे आते हैं एनिमल टिश्यू पे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। Tissues are different and are broadly classified into four types: epithelial, connective, muscular, neural. टिश्यू के चार टाइप्स होते हैं। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यूज, और चौथा आएगा हमारा न्यूरल टिश्यूज। अब आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are two types of epithelial tissues, simple and compound. Simple tissue is composed of single layer of cell and function as a lining for body cavities, ducts, and tubes. Compound epithelium consists of two or more cell layers, has protective function as it does in our skin. On the basis of structural modification of cell, simple cell divided into three types: squamous, cuboidal, columnar. Squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells
with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels, air sac of the lungs, involved in the functions like forming a diffusion boundary. Cuboidal epithelium composed of single layers of cube-like cells commonly found in ducts of glands and tubular part of the nephrons in kidney, and its main function are secretion and absorption. Epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron in the kidneys has microvilli. Columnar epithelium is composed of single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Free surface has microvilli found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. If the columnar and cuboidal cell bear cilia, they are ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner cell of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. They are mainly of two types: unicellular, consisting of isolated glandular cell goblet cell of the alimentary canal, and multicellular, consists of cluster of cell salivary gland. On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories: exocrine and endocrine gland. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme, and other cell products. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts and are also called ductless glands and are also called ductless glands. Their products are called hormones secreted directly into fluid bathing the gland. Compound epithelium is made of more than one layer, multi-layer of cells, and thus has limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover dry surface of the skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct, salivary gland, and of pancreatic ducts. All cells in epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized function provide both structure and functional link between its individual cells. The three types of cell junction are found in epithelium and other tissues. These are tight, adhering, and gap junction. Tight junction help to stop substance from leaking across the tissue. Adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. Gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm at joining cell for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. This is important topic. Two questions can come in NEET 2020. Let's make notes now.
जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनके पास फ्री सरफेस होते हैं which faces either a body fluid or outside environment. जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक लेयर से सेल की एक सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं, composed of a single layer of cells। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लाइनिंग बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। फिर आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक से मतलब दो या दो से ज्यादा सेल लेयर से मिलके बने होते हैं। टू या फिर मोर देन टू। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनका है काम प्रोटेक्शन करना। जैसे हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर होती है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फिर कह रहे हैं जो सिंपल टिश्यू होता है वो तीन टाइप की होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमर। अब आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो होता हमारा सिंगल थिन लेयर्ड फ्लैटेंड सेल्स होते हैं
इरेगुलर बॉडीज होती हैं। इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स। और इनका फंक्शन है, मतलब ये क्या काम करते हैं? ये फॉर्म करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्रीज को, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री। अब आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो इनके पास क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कि एक सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं। सपोज सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन? पहले तो पाए जाते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी। और इनका जो मेन फंक्शन है, इनका फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। फिर आता है हमारा कॉलमर एपिथेलियम।
फिर कॉलमर एपिथेलियम बनते हैं कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, सिंगल लेयर of tall and slender cells. इनकी जो न्यूक्लियाई है वो सेल के बेस पर लोकेटेड होती है। इनके जो न्यूक्लियाई है वो सेल के बेस पे लोकेटेड होती है। फ्री सरफेस इनके पास माइक्रोविलाई भी होते हैं, हो सकते हैं। फिर आया हमारा लोकेशन। इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अब इनका फंक्शन फंक्शन है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर कॉलमर और क्यूबॉइडल सेल के पास सीलिया होगा उनके सरफेस पे, तो हम लोग कहेंगे कि ये सीलिएटेड एपिथेलियल सिंपल टिश्यूज हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल सिंपल टिश्यूज हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? सीलिया मतलब कि मूव करने की टेंडेंसी है इनके पास, ठीक है। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, ये मूव करें या इनके थ्रू कोई चीज मूव करे, तो ये मूव कराते हैं पार्टिकल या फिर म्यूकस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियल के ऊपर। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन जहाँ हॉलो सरफेस या सॉरी हॉलो ऑर्गन्स होंगे वहां ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स like bronchioles and fallopian tubes.
ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आएगा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कुछ कॉलमर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स, कॉलमर, सम कॉलमर और क्यूबॉइडल सेल स्पेशलाइज होते हैं सेक्रीशन के लिए। उनको हम लोग कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सिंपल टिश्यू। ठीक। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सिंपल टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर होते हैं इनके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग गॉबलेट सेल भी कहते हैं। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ pouring of their secretions, जो ग्लैंड है वो दो टाइप में बंटता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सेक्रिएट करेगा म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स।
ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिलीज होते हैं थ्रू डक्ट्स या फिर ट्यूब्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इनके पास डक्ट्स नहीं होते, इसीलिए हम लोग इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ये प्रोडक्ट्स के नाम पे हार्मोन सेक्रीट करते हैं जो कि डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में जाता है ग्लैंड्स में। फिर आएगा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं। इनका लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ये कवर करते हैं स्किन के ड्राई सरफेस को मॉइस्ट सरफेस ऑफ बगल कैविटी। फेरिंग्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइप के सेल जंक्शंस आ गए। पहला आया टाइट जंक्शन, फिर दूसरा है हमारा एडहिरिंग जंक्शन, फिर तीसरा है गैप जंक्शन,
एजरिंग जंक्शन, इसका फंक्शन है टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग across a tissue. एजरिंग जंक्शन, इसका फंक्शन है टू परफॉर्म सीमेंटिंग to keep neighboring cells together. फिर गैप जंक्शन, to facilitate the cell facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. टोटल इसका काम है टू स्टॉप लीकिंग या फिर टू स्टॉप लीकेज, इसका काम है सीमेंटिंग और इसका काम है कम्युनिकेशन। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडी में। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल फंक्शन है जो कि लिंकिंग और सपोर्ट कर, मतलब कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू या फिर ऑर्गन से जोड़ता है और सपोर्ट करता है। ये सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू से लेकर के स्पेशलाइज टाइप के रेंज में आते हैं। इनके पास कार्टिलेज, मतलब इनमें कार्टिलेजेस आते हैं, बोन्स आते हैं, एडुपोस और ब्लड आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, cells secrete fibers of the structure protein called collagen or elastin. The fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cell and fibers and act as matrix ground cell substance. कनेक्टिव टिश्यू के तीन पार्ट, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। पहले डायग्राम देखते हैं एरियोलर टिश्यूज का।
ये हमारे माइक्रोफेजेस, ये हमारे फिब्रोब्लास्ट, ये हमारे कोलेजन फाइबर्स, ये हमारे मास्ट सेल। और ये डायग्राम है एरुलर टिश्यू का। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। फिर एडिपोज टिश्यू में ये हमारा है फैट स्टोरिंग्स एरिया, ये ब्लैक ब्लैक है हमारी न्यूक्लियस, और ये लेयर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये लेयर एडिपोज टिश्यू। डेंस, ये हमारे डायग्राम है डेंस रेगुलर का, और ये है डेंस इरेगुलर का। डेंस रेगुलर में ऐसे होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर, और डेंस इरेगुलर में ऐसे होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर। ठीक है, अब आगे आते हैं। लेट्स मेक नोट्स। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडीज में। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग और सपोर्टिंग का। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या फिर ऑर्गन तक। ठीक है, फिर इनमें आते हैं कार्टिलेजेस, इंक्लूड्स कार्टिलेजेस, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यूज जो ऊपर मेंशन्ड है सारे, ब्लड छोड़ के सेक्रेट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसको हम लोग कहेंगे कैलोजिन, कोलेजन या फिर इलास्टिन। तो जो फाइबर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी
flexibility to tissues. ठीक है, ये जो सेल्स है ये पॉलीसेकेराइड भी सेक्रेट करते हैं, modified polysaccharides, which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance. फिर आता है कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट्स या फिर टाइप्स। पहला आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें क्या जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है इनके पास जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। जैसे कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ये एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क इसका फंक्शन होता है। इसके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं। जो सेल है ये सेल दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर। फिब्रोब्लास्ट मतलब कि सेल जो कि प्रोड्यूस और सेक्रेट करते हैं फाइबर्स को। इनके पास माइक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो एक और टाइप होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के। ये भी ये भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, स्किन के लेयर के नीचे पाए जाते हैं। जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है जो तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं फिर ये स्टोर हो जाता है टिश्यूज के अंदर। फिर हम कहते हैं जो फाइबर्स ऑफ फिब्रोब्लास्ट है उसको हम लोग मिला के कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ओरिएंटेशन फाइबर्स जो अगर रेगुलर है तो डेंस रेगुलर, अगर मतलब रेगुलर पैटर्न शो करना है तो ये हमारे होंगे डेंस रेगुलर टिश्यूज। और इरेगुलर पैटर्न शो कर रहे हैं तो ये हमारे होंगे डेंस इरेगुलर टिश्यूज। जो डेंस रेगुलर टिश्यूज होते हैं इनमें जो कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं वो मतलब वो रोज के मतलब प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। कई पैरेलल बंडल होते हैं, फाइबर्स के कई पैरेलल बंडल्स होते हैं उन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। tendons which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attach one bone to another bone are example of this tissue। मतलब कि डेंस रेगुलर वाले के टिश्यू एग्जाम्पल्स हैं ये।
जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं और मैनी फाइबर मेनली कोलेजन पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू है वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज, बोन और बोन सब बोन आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। मतलब कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ये कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ये वेरियस टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है, प्लेएबल होता है और रेजिस्ट होता है। जो सेल होते हैं इस टिश्यू के इनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। Enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। ज्यादातर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में वो रिप्लेस किए जाते हैं बोन से एडल्ट में। जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टिप ऑफ नोज, आउटर आउटर ईयर जॉइंट्स और एडजेसेंट बोन्स के बीच में। वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन्स के बीच में, लिम्स में, हाथ में। जो बोन्स है वो हार्ड होते हैं, नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट में रिच होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। इनका जो मेन इट इज द मेन टिश्यू, ये एक मेन टिश्यू है जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है बॉडी को। बोन सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को। बोन सेल को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो मतलब मीन्स बोन, तो और साइट्स मीन्स सेल्स, तो बोन सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसेस में जिनको हम लोग कहते हैं लैक्यून। लिम्ब बोन जैसे कि लॉन्ग बोन्स हो गए लेग के, सीवियर वेट बियरिंग फंक्शंस। They also interact with skeleton muscle attached to them to bring about movement. Bone marrow in some bones is the site of production of blood cells। जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके पास प्लाज्मा होते हैं, आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। इसका मेन फंक्शन है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना। ठीक है, अब इसके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब आता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके पास जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो एक सेमी फ्लूइडिक ग्राउंड सब्सटेंस में ऐसे अटैच्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं कह सकते हैं। जैसे कि हमारा आया है एरियोलर सेल्स, ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बेनेथ द स्किन। इसका जो काम है ये है सपोर्ट करना, सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। इसके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट मतलब सेल्स जो कि प्रोड्यूस और सेक्रीट करते हैं फाइबर्स को। मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं।
फिर आता है एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है वो एक अनदर काइंड ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो इनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होता है जब वो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो, मतलब इमीडिएटली उसका यूज नहीं हो पाता है, तब वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्टोर हो जाता है टिश्यूज में। जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है। जो ओरिएंटेशन होता है फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन होता है फाइबर्स का अगर वो रेगुलर पैटर्न में है तब फिर वो दिखाएगा डेंस रेगुलर टिश्यू। और अगर इरेगुलर पैटर्न में है तो वो दिखाएगा डेंस इरेगुलर टिश्यू। ठीक है। डेंस इरेगुलर टिश्यू में जो डेंस रेगुलर टिश्यू में जो कैलोजन फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज बिटवीन इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। फिर बात करते हैं टेंडॉन्स के बारे में। टेंडॉन्स विच अटैच skeleton muscles to bones and ligaments which attach one bone to another bone।
राइट। अब आगे आते हैं इरेगुलर डेंस इरेगुलर टिश्यूज में इनके पास फिब्रोब्लास्ट होता है और कई फाइबर्स होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में। फिर बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब आगे आते हैं जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज का जो इंटर सेल्यूलर मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, फ्लेबल होता है और रेजिस्ट होता है। ठीक है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ये इंक्लोज होते हैं स्मॉल कैविटीज में। Within the matrix, secreted by them, most of the cartilage in vertebra जो, ठीक है, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टिप ऑफ नोज में, टिप ऑफ नोज पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे, लिम्स में, हैंड्स में। फिर आते हैं हमारे बोन्स। बोन्स के बारे में बात करते हैं, ये हार्ड होते हैं, प्लेबल होते हैं, नॉन प्लेबल होते, सॉरी, नॉन प्लेबल होते हैं। इनके ये रिच होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स में और कैलोजन फाइबर में। ये रिच होते हैं कैल्शियम सॉल्ट में और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं
ये मेन टिश्यू होता है, कार्टिलेज मेन टिश्यू होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ठीक है, जो बोन्स होते हैं सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। जो बोन सेल्स होते हैं हम लोग उनको ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्पेस, जिसको हम लोग कहेंगे लेग क्यू नी। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ब्लड सेल्स। फिर आता है ब्लड, फिर आता है हमारा ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके पास प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं मसल टिश्यू पे। जो हमारा हर एक मसल कई लंबे सिलिंड्रिकल फाइबर, each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen, and return to their uncontracted state in the coordinated fashion. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment to maintain the position of the various part of the body. In general, muscles play an active role in all movement of the body. Muscles are of three types: skeletal, smooth, and cardiac. This is your NEET 2024 question. Let's mark this.
Important point first. और इसमें कुछ बहुत खास नहीं दिया है। मसल टिश्यू कहते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होते हैं? इट इज क्लोजली अटैच्ड टू skeletal bone. In typical muscles such as biceps, stripped skeletal muscle fiber are bundled. Stripped skeletal fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tongue connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. Smooth muscle fibers taper at both ends, that is fusiform, do not show any striation. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. Wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functions cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle. फिर जो कार्डियक मसल टिश्यू होता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है और सिर्फ हार्ट में ये प्रेजेंट होता है। जो सेल जंक्शन होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फिर ये जो सेल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस intercalated discs at some fusion point allow the cell to contract as a unit. When one cell receives signal to contract, its neighbor are also stimulate to contract. इसमें कुछ बहुत important नहीं लिखा है. Let's make notes first. It is made of many long cylindrical fibers. ये जो fibers है, these fibers composed of numerous fine fibrils जिसको हम लोग कहते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, फिर अब आते हैं मसल और इनके टाइप पे। अब आते हैं मसल्स के टाइप पे। तीन टाइप होते हैं इनके,
skeletal, smooth, और cardiac। पहले आते हैं स्केलेटल मसल पे। These are closely attached to skeletal bones. ठीक है। टिपिकल मसल्स जैसे कि बाइसेप्स हो गए, स्ट्रिप्ड हो गए, they bundle together, the they bundled together in a parallel fashion। फिर आता है स्मूथ मसल फाइबर। ये टेपर होते हैं एट बोथ एंड्स, मतलब कि दे आर ये फ्यूजिफॉर्म होते हैं। ये स्ट्रेशंस शो नहीं करते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं। फिर आता है कार्डियक मसल टिश्यू। ये केवल प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। सेल जंक्शन जो होते हैं, ये फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और सेल्स स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन में जिसको हम लोग इंटर कैलेटेड
डिस्क भी कहेंगे। कुछ फ्यूजन शो करते हैं। फिर जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। कुछ किसी फ्यूजन पे एट सम फ्यूजन points allow cells to contract as a unit। अब आता है हमारा न्यूरल टिश्यूज। ये हमारा एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है न्यूक्लियस के साथ, ये डेंड्राइट है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ब्लैक 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 ब्लैक, ये न्यूरोग्लिया है। अब आता है न्यूरल टिश्यू, आज का आखिरी टॉपिक। Neural tissue exert greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. The neurological cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons. Neurologia make up more than one half the neural system. Neurologia makes up more than one half the volume of neural tissues in our body. When neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated, which swiftly travel into plasma membrane, arrives at disturbance at the neuron ending or output zone, events that may cause stimulation or inhibition or induce neurons and others. Now just we will continue in our next part. Thanks for watching.